اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین سامعین، 2 یا 3 دن کے وقفے کے بعد آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جو سلسلہ ہم نے جو رکا وہ دوائیوں کا، وہ مستقل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے نالج میں، ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے دوائیاں منگانا بھی شروع کی ہیں اور یوز کرنا بھی شروع کی ہیں۔ ناظرین سامعین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان حق اور سچ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو اس راستے میں چیزیں حق اور سچ والی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں کوشش کرتا ہے اور اپنے اپنے دائرے میں وہ کام کرتا ہے جتنی اس کی نالج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس علم سے نوازا جس علم سے بنی نوع انسان کی خدمت ہو سکے، بنی نوع انسان کو تکلیف سے نکال سکے اور بنی نوع انسان صحت مند زندگی گزار سکے۔ ناظرین ہماری ہر طرح سے کوشش رہی کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کے اندر علم دیا جائے اور سچائی دکھائی جائے۔ تقریباً اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں علم کے ساتھ ساتھ سچائی کو بھی فوکس رکھا ہے۔ ناظرین انسان ایک حقیر ہے اور وہ کوشش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، اور کوشش کے نتیجے میں دوسرے انسانوں کو فوائد ملتے ہیں۔ ناظرین آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ صحت جو ہے وہ پریورٹی پہ ہوتی ہے، اور صحت کو حاصل کرنے کے لیے آپ تغدو کرتے ہیں۔ جب انسان آتا ہے دنیا میں تو اس کو بڑی مشکلات، بڑی پریشانیاں، بڑی ٹینشنوں کا وہ شکار ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے تمام ویڈیو میں مختلف لوگوں سے ملایا جو صحت یاب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا کامیابی کے ساتھ اپنی لائف اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ویڈیو اگر آپ نے پچھلی دیکھی ہوگی تو یہ ہمارے قریب اور عزیز نعیم بھائی نام ان کا ہے، نعیم غوری۔ یہ ماشاءاللہ بہترین ٹائلز اور ماربل کے کاریگر ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی عطا فرمائے اس فیلڈ میں۔ ناظرین بڑا پیار بھی رکھتے ہیں ہمارے سے، بڑی محبت بھی رکھتے ہیں، اور اپنی خدمت ہمارے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے جو کوششیں ہیں اس میں نیک نیتی، خلوص، محبت اور پیار کے ساتھ جو یہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے اور دروازے کھولے تاکہ اور راستے کھلیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ ترقی کریں، ان کی فیملی ترقی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا ترقی کرے۔ ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ویڈیو ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ان کو ایک ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ اس طرف آئے، اور کس طریقے سے ان کا اعتماد بڑھا، اور کس طریقے سے یہ اس پہ کانفیڈنس پیدا ہوا۔ تو وہ ویڈیو اگر آپ کو یاد ہو تو میں ہلکا سا اس کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ ان کا ایک ایسا کیس تھا جو بلڈ پریشر کا کیس تھا، جو ان کا حل ہوا، اور اس سے پھر ان کا آہستہ آہستہ اعتماد بڑھتا گیا، اور آج ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے مضبوطی کے ساتھ، ہم سے بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ جب
इंसान जब प्रैक्टिकल कर लेता है तो फिर उसको यकीन उसका इतना पुख्ता हो जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकल के बाद ही इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो नाज़रीन, आज इनको ये हमारे पास आए तो हमने कहा कि आज हम आपको ऐसी डोज खिलाते हैं जिससे जो कमज़ोरी है वो आपकी दूर हो, आपको आपकी अजवाज़ी ज़िंदगी खुश व खुर्रम हो, और आप एक अच्छी और प्यारी लाइफ गुजार सकें। आपके लिए लोग, आपके लिए आसानी पैदा हो आपके मामलात में। तो हमने एक डोज़ इनको खिलाया तो ये बड़े वो हुए कि ये क्या चीज़ है, इन्होंने पूछना भी चाहा, लेकिन हमने कहा कि आप ये खाएँ, ये अंदरूनी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन डोज़ है। इन्होंने खाया, फिर उसके बाद फिर इन्होंने घर पे भी ले गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसके फ़वाइद देखे तो इनका एतमाद बढ़ा, और एतमाद बढ़ने के बाद इन्होंने अपने हल्का अहबाब में जो लोग थे उनको भी खिलाया, और वहाँ से भी इनको जो रिज़ल्ट आया तो बड़ा शानदार था। तो फिर इसकी वजह से इनका एतमाद बढ़ा। अब आपसे हम इनकी ही ज़बानी मालूम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, क्या ये हकीकत है, क्या ये सच्चाई है, क्या ऐसा हुआ है, या सिर्फ़ कोई हम आपको ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। तो ये नाज़रीन, जब इंसान बोलता है और जब वो बात पेश करता है तो उसके बोलने से और बात करने से पता चलता है कि ये कितना सही कह रहा है या कितना गलत कह रहा है। ये फ़ैसला आप कीजिएगा, और हम आपको इनकी ज़बानी सुनते हैं। ज़रा बताइएगा, आपने वो जो डोज़ खाया तो उससे आपको क्या महसूस हुआ, और तबीयत में क्या बेहतरी महसूस हुई, और फिर वो जो आपने अपने जानने वालों को इस्तेमाल कराया तो उससे क्या रिज़ल्ट आपके सामने आया? वो रिज़ल्ट आप ज़रा नाज़रीन को बता दें ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सकें और लोग इधर से और मज़ीद फ़वाइद हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन के सामने इबारत करूँगा कि मेरे जैसे कितने ही जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो एलोपैथिक के पास जाते हैं, और उनका एक ही सवाल होता है कि जनाब, जब तक आप जिंदा हैं ये गोली खाते रहें, अगर आपने आज रात को खाई है तो दूसरे दिन भी आप इसी दिन खाओ। तो मैंने एलोपैथिक के डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब ये तो कोई इलाज ना हो कि ब्लड प्रेशर ख़त्म कैसे होगा। मगर उन्होंने मुझे बोला, भाई जान, ज़्यादा तो आप बहस ना करें, जो गोली है, हम डॉक्टर हैं, आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते। मैंने चलो ठीक है। फिर मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर अब्दुल कादिर से। पहले इन पे भी मुझे एतमाद नहीं था कि, मगर वो अल्लाह ताला ने दिल में डाला तो फिर मैंने इनकी एक दो खुराकें खाई तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। जब रिलीफ मिला तो एतमाद जो ना तभी बहाल होता है जब बंदा कुछ चीज़ खा के उसका रिजल्ट हासिल करे। और मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साल के अंदर एक दफ़ा यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, सिर्फ कि अगर ब्लड प्रेशर में अप डाउन हो जाता है या खाने में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, वरना मैंने उन गोलियों से जान छुड़ाई और इनसे रुजू किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कोई मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, नॉर्मल रहता है मेरा ब्लड प्रेशर, हाई नहीं होता। और दूसरी बात कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम डॉक्टर साहब के पास आके बैठते हैं, दुआ सलाम करते हैं, और डॉक्टर साहब भी खुद नाइस बंदे हैं कि जब कोई चीज़ बंदा बनाता है तो वो सबसे पहले अपनी अजीज़ों को दिखाता है कि वो खाओ, उसका रिजल्ट बताओ। हमने खाया तो जब उसको खा के डॉक्टर साहब के पास दूसरे दिन आया तो मैंने अपने पोशा वाले को बोला था, साईं आपने जो चीज़ बनाई है बड़ी 100 से 100 का रिजल्ट दिया है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। फिर मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनको भी जो दवाई उनको दी, उन्होंने मुझे 100 से 100 का जो ना रिजल्ट दिया। 100 से 100 मुराद ये है कि 100 से 100 रिजल्ट आना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। जिस्म में कमज़ोरी, टांग में दर्द, जिस्म का यहाँ बेजान सा हो जाना, और वो चीज़ को खा के बिल्कुल एक्टिव हो जाना, ये बड़ी बात है। कि हम दर्द के लिए जना पोस्टान फोर पेनाडोल ऐसी कोई गोलियाँ खाते हैं कि भाई जिससे जिस्म जो ना चुस्त हो जाए हमारा। बाकी मेरी जो ना एलोपैथिक के ऊपर से
कोई वो नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा कर होम्योपैथिक से जो है दवाइयाँ, वो मेरा यकीन है इसी में। नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने एक वरवरी सा अपना तारुफ भी कराया, फिर वो तारुफ कराने के साथ साथ इन्होंने ये बात भी बताई कि किस तरीके से इनका एतमाद बढ़ा, किस तरीके से ब्लड प्रेशर में इनको इम्प्रूवमेंट मिली, और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ वो बताया कि किस तरीके से वो दूसरे मुख्तलिफ इलाज से मुतमईन नहीं हुए। अच्छा, फिर उसके साथ साथ फिर इन्होंने जो कुव्वत की और दूसरी दवाई ली तो उसका भी रिज़ल्ट का बताया कि वो किस तरीके से इनको इलाज मिला, इलाज में फ़ायदा हुआ। तो नाज़रीन, वीडियो का बनाने का मकसद जो था वो यही था कि आपको यकीन पैदा हो, एतमाद पैदा हो, आप इस चीज़ को समझ सकें कि सही तरीके से जो इंसान दिल की गहराइयों से, खुलूस से, मोहब्बत से, प्यार से और आपका इलाज करता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ में शिफ़ा डाल देता है। और देखो, शिफ़ा का ताल्लुक़ अल्लाह से ही है। और एक साहब ने मुझे ये कहा कि आपने फ़लाँ वीडियो में ये कहा कि मैंने शिफ़ा दी थी, तो मैं का सीगा बता दूँ हज़रत को कि मैंने मैं का सीगा ख़ास तौर पे इसलिए लगाया था कि वो एक जुमले में लगाया था जब मैं उनको बता रहा था कि मेरे का मकसद ये था कि वो मेरे पास जब वो आए तो उनको शिफ़ा मिल गई। मतलब शिफ़ा अल्लाह ने ही दी। तो ज़रा वो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो दूसरी तरफ चला गया था मैं के सीगे से। मेरा कतई ये मकसद नहीं था कि शिफ़ा अल्लाह ही देता है। दूसरे एक साहब ने कहा कि आप जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस से अपने इलाज की तारीफ़ करते हैं और दूसरे इलाज को मैंने कभी किसी इलाज को उसके खिलाफ़ कोई नहीं बोला। सब इलाज बेहतर इलाज हैं और सबको कराना चाहिए, और मैं अपनी हकीर सी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो शिफ़ा है ये अल्लाह ताला ही डालता है, तो अल्लाह ने अगर शिफ़ा डाल दी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो भी मरीज़ आ रहे हैं वो शिफ़ा हासिल कर रहे हैं। मेरा इस तरफ भी किसी को भी कभी भी मैंने किसी इलाज के डिग्रेड करने की कोई मेरा वो नहीं है, क्योंकि हर इलाज एक इलाज है और हर इलाज में फ़वाइद मिलते हैं, लेकिन हर इलाज एक मुकम्मिल इलाज भी नहीं है नाज़रीन। और मुकम्मिल इलाज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो प्रोवाइड करती है। हर इलाज में कमी ख़ामी है, कुछ ख़ामियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से नाज़रीन हर इलाज से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे कमेंट्स आए, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने अभी बात से बात निकली तो वीडियो में ये ज़िक्र कर दिया कि नाज़रीन जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट जैसे मैसेज पे डायरेक्ट कमेंट्स मालूम कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई बात ऐसी निकल जाए जो आपको नागवार गुज़रे या आपकी समझ में ना आए या आप उसको समझ नहीं सकें, तो वो कंसल्ट कर लें। इंसान है, इंसान जब बोलता है तो कोई ऐसा जुमला भी निकलता है जो आपके माइंड को अपील नहीं करता, तो आप मालूम कर लें, तो उसमें मेरी भी इस्लाह हो सकती है, आपकी भी इस्लाह हो सकती है। इसी तरीके से माशरे की इस्लाह हो सकती है और सुनने वालों की भी इस्लाह हो सकती है। नाज़रीन, मेरी तो ये कोशिश है कि वीडियो से इल्म भी मिले और आपको फ़वाइद भी हासिल हों और आप इलाज कर सकें। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग दवाइयाँ ख़ुद घर पे रखें। मैं नाज़रीन जब एक साहब से मिला तो वो मुझसे इतना कंसर्न करते थे, वो शुगर के पेशेंट थे। उन्होंने घर में ही अपना एक दवाख़ाना बना रखा था। वो जब भी मिलते थे किसी डॉक्टर से कोई दवाई लिखते थे तो वो ला के रख लेते थे, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उस दवाइयों को अपनी फ़ैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप लोग भी कर सकते हैं नाज़रीन। आप लोग उसी सूरत में करेंगे जब आप परचेज़ करके अपने घर में ला के रख लेंगे। ये दवाइयाँ जो होती हैं, जर्मनी की दवाइयाँ, ये एक्सपायर नहीं होती। अगर आप एक मोशन की दवाई ला के रख लेते हैं, तो वो एक्सपायर नहीं होती, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। तो उसमें आपकी फ़ैमिली को तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाते हैं। तो मैं तो एक अच्छा काम कर रहा हूँ। आप लोगों के अखराजात में कमी लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये वीडियो कैसी रही और आपने इसको कैसा पाया और इसमें क्या-क्या कमी थी, क्या-क्या अच्छाइयाँ थी, जो भी हो वो आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, कामयाब करे, आमीन। इसी उम्मीद के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ कि देखते रहिए
اور سبسکرائب کرتے رہیے. اللہ حافظ.